Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next lecture in our economic series that is a wonderful initiative of Udan IES. Acha. To be more specific, in the last of the classes, we majorly had discussed regarding a few of the things that is how the RBI functions, what is actually RBI, how it is actually the regulator of entire of the banking system. If I'm talking about how RBI is called as the lender of the last resort and all those kind of things, okay? How RBI is lending to the government and all those kind of stuffs we had discussed. To be more specific in the same line, what we will be doing today, we will be discussing regarding few other of the things that could be helpful, in this entire of the sequence. ठीक. So आज मैं क्या करूँगा? What I will be discussing today is that I will be discussing few of the differences that I in the last of the class I majorly had given you a gist. Okay, what had been the gist in the last of the class? I had told you that is how RBI is responsible for the circulation of the currency, for the printing of the currency. ठीक. But how RBI's currency power are different from that of government of India's currency power. Few of the stuff that we will be discussing after the in this entire of the in this entire of the lecture. Plus, we will be having a certain kind of discussion on different of the liabilities that a bank had to face. Take few liabilities that a bank had to face, and these are the liabilities we will be discussing over the due course of time. ठीक है, so थोड़ी थोड़ी क्या ये वाली चीजें मैं बात करता हूँ. देखो, so if I'm talking about the RBI में मैंने I told you that is RBI responsible for the printing of currency. ठीक. But in order to bring out a more distinct distinction between that of RBI as well as the government of India, may we had to look into few of the things. For example, I am saying, if I am saying, as per Indian Coinage Act of 1906, okay, as per Indian Coinage Act of 1906, what we are saying that is coins can be issued up to the denomination of rupees 1000. ठीक, अभी तक हमने कहाँ तक के कॉइन्स देखे हैं? ठीक है, 10 रुपए तक के कॉइन्स वी आर क्या यूजुअली सीइंग. ठीक, बट व्हाट दिस Indian Coinage Act of 1906 saying, ठीक, it is majorly saying that is a coin can be of a denomination up to rupees 1000. ठीक है, ठीक, but take as per Reserve Bank of India Act of 1934, ठीक, करेंसी नोट्स कैन बी ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 10,000. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉइनेजेस एक्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉइनेज एक्ट, as well as if I'm talking about RBI Act of 1934. If I'm talking about RBI Act of 1934. Okay. So as per the Coinage Act of 1906, it is saying कि maximum you can have a coin of rupees 1000. इससे ऊपर का coin आप नहीं रख सकते. ठीक. But similarly, if I'm talking about the RBI Act of 1934, what it is saying? It is saying कि maximum note आप कहाँ तक का रख सकते हैं? Maximum note you can have up to 10,000 का denomination. You can have up to 10,000 का denomination. So first and the foremost thing you have to understand. ठीक, अच्छा. Now the next thing that I'm trying to tell you is that I told you that is कि your coins are being minted by the government of India. ठीक, ठीक. But अगर मैं बात करता हूँ that is if I'm talking about that is your reserve bank. ठीक है, if I'm talking about the reserve bank, so एक चीज याद रखना that is only 1 rupee note. Only 1 rupee note is the only currency note that bears the signature of finance secretary. ठीक, जो मेरा 1 रुपए का नोट होता है, that is the only note that is having the signature of finance secretary. Otherwise all the notes that are out there, ठीक है, in the market, उसमें सबके किसमें में साइन होंगे? किसके साइन होंगे? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज 10, सम ऑफ रुपीज 1000, सम ऑफ रुपीज 2000. ठीक है, दैट काइंड ऑफ केस. 1000 रुपए का तो नोट नहीं आता, बट येस, ठीक है, सो पहले आते थे. ठीक, सो आई एम सेइंग दैट इज यू हैव टू क्या रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज 1 रुपी के नोट पे who will be signing? That is finance secretary. And if I'm talking about इसमें, that is rest other of the notes पे who will be क्या signing? That is your Reserve Bank of India का governor. First and the foremost thing that you have to remember.
देन आई एम सेइंग करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन 4 प्रेसेस इन इंडिया, ठीक है, इनके क्या नाम याद रख लेना, ठीक, समटाइम्स इन टुच्चा मुच्चा एग्जामिनेशन दे माइट बी क्या आस्किंग इट, ठीक, 4 प्रेसेस आर आउट देयर हु आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, दैट इज printing of what, printing of the currency in India, ठीक, 2 of the currency note printing press are owned by the government of India and 2 are wholly owned by the RBI, ठीक, दो करेंसी प्रेस कौन ओन करता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड 2 of the currency presses are owned by what, that is RBI, but RBI is not directly owning it but rather through one of its subsidiary, and that is भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड, क्या, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड के थ्रू व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज आरबीआई इज ओनिंग दीज पेपर करेंसी यूनिट्स, ठीक, दिस ऑफ द थिंग यू हैव टू क्या मेजरली रिमेंबर। कुछ और चीजें बता देते हैं इससे पहले क्या, वी विल बी क्या स्विचिंग टू अवर क्या बैंकिंग वाला पार्ट स्ट्रिक्टली, जिसमें क्या इट इज गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल टॉपिक, क्या टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक, एक दो चीजें और याद रखना, क्या, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड प्रेसेस आर एट नासिक, कहाँ पे क्या प्रेसेस अवेलेबल है, नासिक में, ठीक, दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक, देवस इन सेंट्रल इंडिया टू बी मोर स्पेसिफिक इन मध्य प्रदेश, ठीक, and other 2 presses are at Mysore in Karnataka, ठीक, and your Salboni in your state of West Bengal, है ना, so you have to remember that there are 4 presses, government owned presses that are out there, Nasik, Devas, Mysore and Salboni in West Bengal, number first and the foremost thing, ठीक, coins are minted in 4 mints owned by government of India, I told you that is coinages की minting के लिए responsible कौन होता है, that is government of India, ठीक, एंड हु इज क्या कहाँ पर है 4 मिनट्स, नंबर फर्स्ट इज एट मुंबई, नंबर सेकंड इज योर हैदराबाद, नंबर थर्ड इज योर कैलकाटा एंड नंबर फोर्थ इज योर नोएडा, है ना, सो दीज ऑफ द थिंग्स, दीज फ्यू बेसिक थिंग्स यू शुड बी नोइंग रिगार्डिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या करेंसी मेकिंग पावर, check, of government of India as well as your RBI, check, who is responsible for which of the type of the currency, take, whether that is a paper currency then it will be coming through what, through RBI, if that is through coins it will be coming through what, that is your government of India, take, other of the things, that is what is the maximum distinction that they had made basically in what, in your coinage, take, Indian Coinage Act of 1906, it is saying that is it will be what, it will be maximum क्या 1000 रुपए का कॉइन आ सकता है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेइंग क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 इज सेइंग कि मैक्सिमम 10,000 तक आ सकता है ना, सो दीज आर द थिंग यू मेजरली हैव टू क्या अंडरस्टैंड। नाउ सी in this entire other thing, now I will be using few of the term very often, ठीक, कुछ चीजें मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, 3 टाइप की टर्म मैं यूज करूंगा, नंबर फर्स्ट ऑफ दैट ऑफ द टर्म इज गोइंग टू बी योर डिमांड लायबिलिटीज, number first of the term is going to be your demand liabilities, ठीक, number second of the term I will be using is time liabilities, demand liabilities, time liabilities मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा अपने क्या फ्यूचर डिस्कशंस में, सो यू शुड बी हैविंग अ बेसिक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट इज व्हाट इज दिस डिमांड लायबिलिटीज एंड व्हाट इज दिस टाइम लायबिलिटीज, है ना, आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, अच्छा, ठीक, और एक और चीज बहुत ज्यादा यूज की जाती है, दैट इज NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं व्हाट आर दीज एंटायर ऑफ द केसेस ऑल अबाउट। नाउ सी देखो, इफ आई एम सेइंग रिगार्डिंग योर डिमांड लायबिलिटीज, तो देखो यार डिमांड लायबिलिटीज क्या है, ठीक, व्हेनेवर आई विल बी डिमांडिंग फ्रॉम द बैंक हैज टू गिव मी, ठीक, व्हेनेवर मैं जब चाहूंगा तब डिमांड करूंगा, तब बैंक को मुझे उतना अमाउंट देना पड़ेगा, बैंक हैज टू गिव मी दैट अमाउंट व्हेनेवर आई एम डिमांडिंग फ्रॉम द बैंक, सो दैट इज डिमांड लायबिलिटीज, ठीक, जैसे डिमांड लायबिलिटीज में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर आउट देयर, करंट बैंक अकाउंट, ठीक है, करंट बैंक अकाउंट दैट इज आउट देयर, ठीक, करंट बैंक अकाउंट जो मेरा है उसमें मैं जब भी चाहूंगा व्हाट एवर द अमाउंट आई वांट बैंक हैड टू गिव मी, सो दैट इज डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है, डिमांड लायबिलिटीज ऑफ सेविंग बैंक एंड अकाउंट बाय एंड डिपॉजिट बाय अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, मेरा सेविंग बैंक, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट में व्हाट एवर द अमाउंट इज आउट देयर, ठीक, नेक्स्ट ऑफ द थिंग मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट, आई गेस आपको समझ आ गया होगा डिमांड लायबिलिटीज क्या है, व्हेनेवर आई विल बी डिमांडिंग क्या बैंक हैज टू पे मी, ठीक, टाइम लायबिलिटी क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बैंक हैज टू पे मी, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट अगर मैं अभी बैंक के पास जाऊंगा, हाँ वो दे तो देंगे बट उनका एक फिक्स्ड टेन्योर है, दैट इज योर FD विल बी मैच्योरिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम,
एट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम लाइबिलिटी हो जाएगा बैंक को, कि बैंक हैड टू गिव मी दैट मच अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। रिकरिंग डिपॉजिट आरडीज लोग करवाते हैं, ठीक है, कि इतने इतने टाइम पे मुझे रेगुलरली इंटरवल पे आई शुड बी गेटिंग दिस मच ऑफ अमाउंट, ठीक है। सो आरडी, ठीक, एफडी, दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, टाइम लाइबिलिटीज, ठीक। डिमांड लाइबिलिटी क्या है, जब मैंने चाहा, मेरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज माई सेविंग अकाउंट दैट इज आउट देयर, उस पे देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, आई कैन विदड्रॉ एनी अमाउंट ऑफ मनी एट ऑन एनी पर्टिकुलर डे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक। नाउ सी, सो करंट बैंक अकाउंट, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट अ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज, ठीक है, ठीक। तो जो मेरे क्या क्रेडिट गारंटीज, ये आपके फर्दर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूं, दैट इज मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक। लेटर ऑफ क्रेडिट्स इन द सेंस दैट इज जो मेरे लोन के टर्म्स होते हैं, ठीक है, वेन एवर आई एम डिसाइडिंग माई लोन between two particular parties, okay, there could be a portion of the margin, the profit margin that could be fixed, okay, that a bank has to give, ठीक। balances in overdue FD, मेरा क्या FD में क्या कुछ पड़ा हुआ था अकाउंट, ठीक है, क्या कुछ बैलेंसेस जो अभी तक पे नहीं किया था, ठीक है, that I am क्या liable to get, ठीक है। बाकी कंसेप्ट सब में वही है, क्या, कैश सर्टिफिकेट, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ये सब हम सब्सिक्वेंट डिस्कशन में पढ़ेंगे, अभी बस नाम जान लेना कि इनके नाम क्या क्या है, ठीक है। मेल ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट्स, ठीक है, ठीक। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, क्रेडिट बैलेंसेस इन द क्रेडिट कैश अकाउंट, है ना, क्रेडिट कैश क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, दीज ऑफ द थिंग्स, ठीक। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर डिमांड लाइबिलिटी। Now I have told you what is time liabilities. Time liabilities क्या होता है कि at a particular time interval bank has to give me, ठीक है। पहला क्या था, डिमांड लाइबिलिटीज, नंबर सेकंड इज टाइम लाइबिलिटीज, ठीक। टाइम लाइबिलिटीज में आई एम कैरिंग क्या सेइंग, दैट इज सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। दैट इज एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आई विल बी नीडिंग व्हाट, आई विल बी नीडिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्हाट, पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमाउंट, दैट इज 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, व्हाटएवर इज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ माई एफडी, है ना। सो दैट विल बी अ टाइम लाइबिलिटी, ठीक। दूसरे टाइप की लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटीज एग्जांपल क्या है, कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव आरडीज, ठीक है। टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट्स, क्या, एसएसडी, दैट इज स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट्स इफ नॉट पेबल ऑन डिमांड, अगर टाइम पे, वो पहले वाले पे क्या था, डिमांड वाले पे पेबल, अगर ये क्या है, टाइम वाले पे पेबल है, ठीक, ठीक। गोल्ड डिपॉजिट्स एज वेल एज गोल्ड डिपॉजिट्स एज सिक्योरिटीज फॉर एडवांसेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है, अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड अभी मैंने आपको बताया ही नहीं, बताऊंगा व्हाट इज डिविडेंड, ठीक है, हाउ इट इज रिलेटेड टू द शेयर्स एंड ऑल दैट। अभी बस कंसेप्ट याद रखो, व्हाट इज डिमांड लाइबिलिटीज, व्हाट इज टाइम लाइबिलिटीज। इफ they have to give me on my demand liabilities, if they have to give me on a particular time period, then that is a time liabilities, ठीक। अच्छा, इस पे आते हैं, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक। इसमें क्या होता है, डिमांड टाइम लायबिलिटीज माइनस एसेट्स ऑफ द बैंक विद अदर बैंक, एसेट्स ऑफ द बैंक विद अदर बैंक्स, इसको मैं क्या हटा देता हूं। देखो होता क्या है कि हर बैंक इट इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ मनी इन अदर बैंक्स एज वेल, ठीक, इट इज हैविंग मनी इन सर्टेन, so let us try to understand this thing through one simple example. For example, I am discussing regarding NDTL, ठीक। आई टोल्ड यू दैट इज इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर ऑलवेज देयर, कि हो सकता है क्या कि पीएनबी ने अपना पैसा एसबीआई में डाल रखा हो, एसबीआई ने अपना पैसा क्या पीएनबी में डाल रखा हो, व्हाटएवर इज द केस। सो दीज काइंड ऑफ योर इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर ऑलवेज देयर। नाउ आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल, यू टेक द केस ऑफ एसबीआई, ठीक। एसबीआई का आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, टोटल डिमांड एंड time liability that it has to pay is rupees 100, ठीक, is rupees 100, ठीक, 100 है, जिसमें आई एम टेलिंग यू दैट इज फॉर एग्जांपल पीएनबी हैज डिपॉजिटेड 10 रुपीज इन दिस, ठीक है। तो इस 100 में से 90 रुपीज इट इज ऑफ पब्लिक एंड 10 रुपीज दैट इज आउट देयर इज ऑफ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक। So the SBI is very much certain that is PNB will not be क्या coming out in order to ask for its money, ठीक है, in a very short period of time, ठीक। So what it will be doing, it will be
मेकिंग अ व्यू ऑफ दिस 90 ओनली, ठीक है, वो बस 90 के लिए ज्यादा कंसर्न रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू पे टू व्हाट, टू योर बैंक, टू योर क्या मासेस हु आर आउट देयर, द पब्लिक दैट इज आउट देयर, ठीक। तो अगर इस एग्जांपल में मैं करूंगा, इफ आई एम क्या टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट इज द इंटरबैंक डिपॉजिट, ठीक है। सो फॉर एसबीआई के लिए जो एनडीटीएल होगा, एसबीआई के लिए जो एनडीटीएल होगा, ठीक है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, दैट विल बी 100, दैट इज ग्रॉस टोटल वाला, टोटल माइनस द क्या पीएनबी का डिपॉजिट दैट इज आउट देयर 10 क्या है, पीएनबी डिपॉजिट विद एसबीआई, ठीक। सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज 90, ठीक है। सो दिस 90 विल बी व्हाट, दैट इज एनडीटीएल ऑफ एसबीआई, ठीक ठीक। तो एनडीटीएल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, ठीक, यूपीएससी का, ठीक। इस पे नहीं है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ग्लॉसरी पे आया था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर कुड बी सर्टेन काइंड ऑफ डिबेट की वेदर दिस क्वेश्चन इज ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। तो आई विल बी सेइंग दिस क्वेश्चन इज ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, कि आपकी इकोनॉमिक्स पहले कैसे थी, है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, सो प्लीज हैव अ लुक, ठीक। तो उसमें दे हैड आस्क्ड व्हाट इज हुंडी का कंसेप्ट है, दिस एंटायर ऑफ द हुंडी का कंसेप्ट इज मेंशन्ड इन योर हिस्ट्री का बुक एज वेल एज योर इकोनॉमिक्स का बुक एज वेल, है ना, दोनों में ही मेंशन्ड है व्हाट इज हुंडी, ठीक है। सो व्हाट इज हुंडी, generally which of the following phrase described as hundi generally referred in the post harsha period, an advisory issued by the king, no, diary to be maintained by the daily accounts, no, a bill of exchange, ठीक है, it is the right answer, an order from the feudal lords to the subordinates, no, तो answer is C, bill of exchange। whenever there is a kind of exchange that was क्या given, that was क्या mainly क्या between money lenders and all those kind of people, money lenders as well as the masses, ठीक है, बीच में जब भी इस टाइप का एक्सचेंज होता था तो उस पे क्या होता था, एक रिटन काइंड ऑफ का डॉक्यूमेंट रिलीज होता था, एंड दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट, हुंडी। सो इट इज व्हाट, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास, ठीक। और जैसे ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आई एम क्या ऑलवेज मेंशनिंग यू अबाउट इट, ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑब्वियसली यू कैन, ठीक है, Sammy2908 इज माय टेलीग्राम ग्रुप, ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन इट, ठीक। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लासेस। और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए, वाई, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज अ गेम ऑफ EQ। चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।